Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. Now we will start revision of lesson number 7, mode division. So before starting our today's topic, first we will see what we had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at here. First we will see what you had learned our last classes in this lesson, mode division. So first we had learned the 2-digit number divided by 1-digit number. Then after we had learned the division with regrouping. Then after we had learned the division of 3-digit number without regrouping. So up to exercise 7.2 we had done our last class. Then this example also we had done. Now look at here exercise 7.3, work out division sums using the long division method. So this is by using the long division method we will solve the example. 96 divided by 3. 96 divided by 3. So 9 is present in the 3 tables. Yes, that 3 is the 1-digit number. 3 क्या है 1-digit number है, तो उसको हम यहाँ से भी हम 1 digit लेंगे. So 9 3 के टेबल में 9 आता है. यस 3 के टेबल में 9 3 वाले प्लेस पे आएगा, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया. 9 माइनस 9 0. नाउ ब्रिंग आउट 6. 6 को हम नीचे लेंगे. अभी 6 3 के टेबल में आता है. यस 3 के टेबल में 6 आता है 2 के प्लेस पे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया. और 6 माइनस 6 0, तो हमें आंसर कितना मिल गया है 32 मिल गया है. देन लाइक दैट एग्जाम्पल नंबर 2 आल्सो. नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 3. 3 डिजिट नंबर है और यहाँ पे कितना है 2 डिजिट नंबर है. तो यहाँ पे 10 ये 2 डिजिट नंबर है, तो हम यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर लेंगे. क्या लेंगे 2 डिजिट नंबर लेंगे. सो 99 डिवाइडेड बाय 10. 99 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 99 10 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो हम नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे. 10 के टेबल में 99 की नियरेस्ट वैल्यू कितनी है 90 है. 90 कौन से प्लेस पे है 9 वाले प्लेस पे, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया है. और 99 माइनस 90 कितना होगा 9 होगा, तो यहाँ पे 9 लिख दिया है. और ये 0 को हमने नीचे लिख दिया है, तो यहाँ पे कितना आ गया 90. अभी 90 10 के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है 9 वाले, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया. और 90 माइनस 90 कितना हो गया है 0 हो गया. देन एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल 4 में क्या है 888 डिवाइडेड बाय 8. 880 डिवाइडेड बाय 8. नाउ 8 के टेबल में 1 वाले प्लेस में आता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया. 8 माइनस 8 0. देन 8 को ब्रिंग आउट किया है. 8 के टेबल में 8 1 वाले प्लेस पे आता है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया. यहाँ पे 8 माइनस 8 0. नाउ 0 व्हेन वी आर डिवाइडेड बाय 0 इन एनी नंबर, सो विल राइट हियर 0. से यहाँ पे 0 0 माइनस 0 0, तो कितना आंसर आ गया है 110. कितना आंसर आ गया है 110. देन 48 डिवाइडेड बाय 4. 48 डिवाइडेड बाय 4. नाउ 4 के टेबल में 4 आता है. यस 1 वाले प्लेस पे, तो हमने 1 लिख दिया है. 4 माइनस 4 0. नाउ ब्रिंग आउट 8 4 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे आता है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया. और 8 माइनस 8 0, तो हमें आंसर कितना मिल गया है 12. सो दिस इज सम एग्जाम्पल. नाउ एग्जाम्पल 6 लुक एट हियर. एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है 7 84 डिवाइडेड बाय 7. 84 डिवाइडेड बाय 7. नाउ 8 इज प्रेजेंट इन द 7 टेबल. No, so what is the nearest value? 7 is the nearest value in the 7 table. So we are writing 7 here and here writing 1, because 7 is the place of 1. So 8 minus 7 1. Now bring out 4. 14 is present in the 7 table. Yes, in the place of 2. So 14 minus 14 0. So we will get question is the 12. Then look at example number 7. 906 divided by 3. 906 divided by 3. Now 9 is present in the 3 tables. Yes, 9 is present in the 3 tables in the place of 3. So we are writing here 3, and 9 minus 9 0.
0. Now bring out 0. When we are divided 0 in any number, so we'll get answer 0. So we are writing here 0 and 0 minus 0, 0. Now bring out 6. 6 is present in the 3 table. Yes, in the place of 2. So we are writing here 2 and 6 minus 6, 0. So we'll get answer 302. How much getting quotient? 302. Then 600 divided by 3. 600 divided by 3. So 6 is present in the 3 tables. Yes, in the place of 1, in the place of 2. So we are writing here 2. In 6 minus 6, 0. 6 minus 6, 0. 600 divided by 3. Okay, so 6 is present in the 3 table in the place of 2. So we are writing here 2 and 6 minus 6, 0. Now bring out 0. When we are divide 0 in any number, we will get answer is 0. 0 minus 0, 0. Now bring out 0. When we are divide 0 in any number, we will get 0. So 0 minus 0, 0. So we will get answer 200. Answer कितना मिल गया है? 200 मिल गया. So like that example number all that in exercise 7.3 में बाकी एग्जाम्पल भी सेम ही है. ओके, लाइक दैट मैंने एग्जाम्पल नंबर 20 तक आपको एक्सप्लेन किया है. 21 से मैंने होमवर्क दिया था आपको. 20 में एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करी हूँ, बाकी के आपको आता ही है. ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 21. 884 divided by 4. 884 divided by 4. Now 8 is present in the 4 table. Yes, in the place of 2. So we are writing here 2 and 8 minus 8, 0. Now bring out 8. 8 is the place of 2. So 8 minus 8 we will get 0. Now bring out 4. 4 is the place of 1 in the 4 table. So we'll write here 1 and 4 minus 4, 0. So we'll get answer 221. हमें आंसर कितना मिल गया है? 221 हमें आंसर मिल गया है. बाकी के एग्जाम्पल भी सेम है. 21 सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. 22, 23 ये आपको होमवर्क दिया था मैंने ऑलरेडी. Now look at here next topic our division of 3-digit number without regrouping. Division of 3-digit number without regrouping. So यहाँ पे क्या है? 3-digit number है. Divide the 868 by 7. 868 by को 7 के साथ डिवाइड करना है. ठीक है. So 8 is present in the 7 tables. Now what is the nearest value? 7. 7 is the place of 1. So 8 minus 7, 1. 8 minus 7, 1. Now bring out 6. 6 now which is the number? 16. 16 is present in the 7 table. Now what is the nearest value? 14. 14 is the place of 2. So 16 minus 14, 2. Now bring out 28. 28 present in the 7 table. Yes, in the place of 4. 7 4s are 28. So 28 minus 28, 0. So we will get question 124. Then example number 2, 640. 640. So 6 is small than 8. So we'll take 2 numbers. 6 is small than 8. So we'll take 2 numbers. So 64. 64 is present in the 8 tables. Yes, in the place of 8. So 8 8s are 64. So 64 minus 64, 0. Now bring out 0. When we are divide 0 in any number, we will get answer 0. So 0 minus 0, we will get 0. And question we will get 80. And this is some example from your textbook. Now look at here exercise 7.4. Okay, 7.4 में क्या है? 955 divided by 5. Now 9 is present in the 5 tables. No, what is the nearest value? 5. 5 is the place of 1. So 9 minus 5, 4. Now bring out 5. 45. 45 is present in the 5 tables. Yes, in the place of 9. So 45 minus 45, 0. Now bring out 5. 5 is the present in the 5 table in the place of 1. So 5 minus 5, 0. So we will get question 191. Then example number 2, 3, 4 same like that. Now look at here up to 6 हमने already explain किया है. Now look at here example number 7. example 7 और 8 हम solve करेंगे. ठीक है.
ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्या है 765 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन पे 1 लिखा है, तो 5 के फर्स्ट वाले प्लेस पे क्या आएगा, 5 के फर्स्ट वाले प्लेस पे क्या आएगा 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गया है, यहाँ पे कितना बच गया 2। नाउ ब्रिंग डाउन 6, क्या है 26 हो गया। अभी 5 के टेबल में 26 आता है क्या, नहीं आता है। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 25 कौन से प्लेस पे आता है 5 वाले प्लेस पे आता है, तो यहाँ पे आ गया है 25। 26 में से 25 गया, कितना बच गया है 1 बच गया। नाउ ब्रिंग डाउन 5 15। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिखा है, 5 के टेबल में 3 वाले प्लेस पे 15 आता है, सो 15 माइनस 15 कितना होगा 0। सो हमें आंसर कितना मिल गया है 153। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है 544 डिवाइडेड बाय 2। 544 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 5 is present in the two tables. No, what is the nearest value 4. 4 is the place of 2. 5 आता है क्या 4 2 के टेबल में, नहीं आता। नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी 4 होगी। 4 कौन से प्लेस पे आता है 2 वाले प्लेस पे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 5 माइनस 4 कितना होगा 1 और ब्रिंग आउट 14। 2 के टेबल में 7 वाले प्लेस पे 14 आएगा, तो 14 माइनस 14 क्या होगा 0। नाउ ब्रिंग आउट 4। 4 इज प्रेजेंट इन द टू टेबल्स, यस इन द प्लेस ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 माइनस 4 0। तो हमें आंसर कितना मिल गया है 272। आंसर कितना मिल गया है 272 हमें आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4। Now look at here, this is the exercise 7.4। क्वेश्चन नंबर सी में से फर्स्ट वाला है 585 डिवाइडेड बाय 3। 585 डिवाइडेड बाय 3 है, तो हमने यहाँ पे डिवीजन किया हुआ है। सो 5 इज प्रेजेंट इन द 3 टेबल्स। नो, व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 3। 3 इज द प्लेस ऑफ 1, सो 5 माइनस 3 2। नाउ ब्रिंग डाउन 8, सो यहाँ पे 28 आ गया। 28 प्रेजेंट इन द 3 टेबल्स। नो, व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 27। 27 इज द प्लेस ऑफ 9, so we are writing 9 here and 28 minus 27 1. Now bring out 5, यहाँ पे 15 हो गया। 15 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 के टेबल में 15 5 वाले प्लेस पे है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। 15 माइनस 15 0, सो वी विल गेट क्वेश्चन इज द 195। हमें क्या मिल गया है क्वेश्चन हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 15 तक हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था, और 16 से मैंने होमवर्क दिया था। तो 1 मैं आपको क्या कर रही हूँ बता रही। एग्जाम्पल नंबर 17 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 17 क्या है 837 डिवाइडेड बाय 3। 837 डिवाइडेड बाय 837 डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, अभी हम इस डिवीजन करेंगे। नाउ 8 is present in the 3 tables. What is the nearest value 3 6 9। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9. 9 is greater than 8, so we'll take 6. 6 is the place of 2, so we'll write here 6 and 8 minus 6 कितना होगा 2। now bring out 3 23। यहाँ पे हम पहले टेबल लिख देंगे 3 6 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ठीक है, 23 के नियरेस्ट वैल्यू क्या है 21 एंड 24, बट 24 इज ग्रेटर देन 23, सो विल टेक 21। 21 इज द प्लेस ऑफ 7, सो विल राइट हियर 7। यहाँ पे हम लिख देंगे 23 माइनस 21 कितना होगा 2। नाउ ब्रिंग आउट 7 27। Now 27 is present in the 3 tables, yes in the place of 9, so we'll write here 9. 27 minus 27 0, so we'll get answer 279। कितना आंसर मिल गया 279। so all example like that, okay।
नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल. नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन विथ रिमाइंडर 2 and 3 डिजिट नंबर. अभी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाता है, 0 बच जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर बच रहा है कुछ. तो यहाँ पे देखो 76 डिवाइडेड बाय 3, 76 डिवाइडेड बाय 3 है. So 7 is present in the 3 tables. No, what is the nearest value? 6. 6 is the place of 2. So 7 minus 6, 1. Now bring down 6. So यहाँ पे आ गया 16. 16 is present in the 3 tables. No, what is the nearest value? 15. So 15 is the place of 5. So 16 minus 15 we will get 1. तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना मिल गया है, 25, और रिमाइंडर कितना मिल गया है, 1 बच गया है. कुछ एग्जाम्पल टोटली डिवाइड नहीं होता, उसमें क्या होता है, कुछ रिमाइंडर बचता ही है. ठीक है. देन 3 डिजिट नंबर, 306 डिवाइडेड बाय 7. नाउ 3 इज द स्मॉल देन 7, सो विल टेक 30. 30 आता है 7 के टेबल में, नहीं आता. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 28. 28 इन द प्लेस ऑफ 4, सो 30 माइनस 28, 2. नाउ ब्रिंग डाउन 6. यहाँ पे क्या गया है, 26. 26 is present in the 7 tables. No, what is the nearest value? Nearest value is 21. 20 is placed. 21 is the place of 3. So we will write here 40. यहाँ पे क्या लिखेंगे, 26 minus 21 we will get 5. 5 is the remainder and 43 is the quotient. Now look at here exercise 7.5. इसमें से हमने कुछ एग्जाम्पल हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे. एग्जाम्पल नंबर 1, लुक एट हियर. 96 डिवाइडेड बाय 2. सो 9 इज प्रेजेंट इन द 2 टेबल्स. नो, व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 8. 8 इज द प्लेस ऑफ 4, सो वी आर राइटिंग 4. 9 माइनस 8, 1. देन ब्रिंग डाउन 6. 16 इज प्रेजेंट इन द 8 टेबल्स, सो 16 माइनस 16, 0. यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया है, 0 बच गया है. नाउ 79 divided by 3. 79, 7 is present in the 6 table. No, what is the nearest value, 6. 6 is the place of 2, so 7 minus 6, 1. Now bring down 19. 19 is present in the 3 tables. No, what is the nearest value, 18. 18 is the place of 6, so we are writing here 26, and 19 minus 18 equal to 1. So we will get remainder equal to 1. So ये हमने एग्जाम्पल क्या किए थे, सॉल्व किए हैं. अभी एग्जाम्पल नंबर 28, सिर्फ 1 आपको यहाँ पे फिर से क्या कर रही हूँ, एक बार सॉल्व करके दिखा रही हूँ. एग्जाम्पल नंबर 28 क्या है, 278 डिवाइडेड बाय 3. 278 डिवाइडेड बाय 3. नाउ 2 इज द लेस देन 3. 2 ये छोटा है 3 से, तो हम लेंगे 27. 27 इज प्रेजेंट इन द 3 टेबल्स. यस, क्वाइट हियर. यहाँ पे 3 का टेबल है. 27 3 के टेबल में आता है. यस, इन द प्लेस ऑफ 9. सो विल राइट हियर 27 माइनस 27, 0. नाउ ब्रिंग डाउन 8. नाउ 8 इज प्रेजेंट इन द 3 टेबल्स. नो, व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 6 एंड 9. 6 और 9 में से 9 ये ग्रेटर है, तो 9 नहीं लेंगे हम, 6 लेंगे. 6 इज द प्लेस ऑफ 2, सो यहाँ पे 2 लिख देंगे. और 8 में से 6 क्या कितना बच गया है, 2. सो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है, 92, और रिमाइंडर कितना मिल गया है, 2 मिल गया है. क्वेश्चन इक्वल टू 92 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 2, हमें ये आंसर मिल गया है. So this some example we are already done. Okay, now look at here when we will divide it by 10. जब हम क्या करते हैं, 10 के साथ डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो क्या होता है, जैसे अभी 92 है, ठीक है. जब हम 10 के साथ किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, तो जो भी हमारे 1 वाले प्लेस पे वैल्यू रहती है, वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है. जो भी वैल्यू 1 वाले प्लेस पे, मतलब यहाँ पे 92 है, सो जो 2 है 1 वाले प्लेस पे है, और ये जो 9 है 10 वाले प्लेस पे. जब हम 10 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, सो वट एवर द नंबर इन द 1 प्लेस, दिस विल बी, वी विल गेट क्वेश्चन. हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है. देखो यहाँ पे 92 है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल गया, और 9 हमें
और जो भी नंबर क्या होता है, रेस नंबर होते हैं, वो हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। 92 में 2 1 वाले प्लेस में है तो ये रिमाइंडर हो गया, 9 हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे 349 है तो 349 में जो भी वैल्यू कौन से प्लेस पे है, हमारे 1 वाले प्लेस में है, वो हमें रिमाइंडर मिल गया और जो बाकी के रेस्ट नंबर है वो क्वेश्चन मिल गया। मतलब यहाँ पे 34, यहाँ पे 63 है। देखो ये हमें क्या मिल गया है, ये हमें क्वेश्चन मिल गया है और ये हमें रिमाइंडर मिल गया। जब हम 10 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, जो भी नंबर 1 वाले प्लेस पे होता है वो हमें रिमाइंडर मिलता है और बाकी के जितने भी नंबर है वो हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलता है। तो ये जब हम 10 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तब। अभी देखो यहाँ पे नंबर है 4598 है। जब हम उसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो 8 है वो हमें मिलेगा रिमाइंडर और 459 हमें मिलेगा क्वेश्चन। क्या मिलेगा, क्वेश्चन। जब हम 10 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो 1 वाले प्लेस पे वैल्यू होता है वो होता है रिमाइंडर और बाकी के जो रेस्ट नंबर होगा वो हमारा होता है क्वेश्चन होता है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 7.6 में है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज 7.7। दिस आल्सो वी हैड डन आवर लास्ट क्लासेस। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। Look at here, first example. 9 men divide ₹702 equally among themselves. So how much did man get? 9 मैन टुगेदर, 9 मैन के पास टोटली कितने पैसे हैं, 702 है। तो उनको इक्वली कितने पैसे मिलेंगे वो पूछेंगे। तो इसके लिए हमें 702 को डिवाइड करना पड़ेगा 9 के साथ। हमें 1 मैन को कितना पैसा मिला है वो निकालना है। तो हमने 702 को 9 के साथ डिवाइड किया तब हमें क्वेश्चन मिला है 78। सो हर एक मैन को कितने पैसे मिलेंगे, 78 रुपीज़ मिलेंगे। देन नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 2। A student can sit at a desk. A student can sit at a desk. How many desks need a 64 children? देखो एक डेस्क में कितने चिल्ड्रन बैठते हैं, 4 चिल्ड्रन बैठते हैं। तो क्लास में कितने चिल्ड्रन है, 64 चिल्ड्रन है। तो हमें कितने डेस्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 64 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 के साथ। 64 को 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगर हम 4 को 64 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 6 आता है क्या, नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे 4 लेंगे, यहाँ पे 2 और 24। 6 में से 4 गया, कितना बच गया, 24। नाउ 24 इज प्रेजेंट इन द 6 टेबल, यस, सॉरी 4 टेबल, यस, इन द प्लेस ऑफ 6। 4 6 are 24, सो 24 माइनस 24 0। सो हमें कितने डेस्क की ज़रूरत पड़ेगी, 16 डेस्क की ज़रूरत पड़ेगी। 16 डेस्क की ज़रूरत पड़ेंगी 64 चिल्ड्रन के लिए। तो ये हमने एक्सरसाइज लास्ट क्लास में डन की है, मतलब आपको पहले से ही डन किया है, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली आता है होगा एक्सरसाइज पूरी। मैथमेटिक्स ए ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ से सॉल्व किए थे, सेम है। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। 2 डिजिट डिवाइड किया है, 3 डिजिट नंबर डिवाइड किया है। फिर ये हमने एक्सरसाइज भी किए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे। देन मेंटल मैथ्स, यहाँ पे देखो 10 के साथ डिवाइड किया है। तो जब हम 10 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो भी हमें 1 वाले प्लेस में नंबर आता है वो हमें रिमाइंडर और बाकी के रेस्ट नंबर हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। देन एक्सरसाइज मैथमेटिक्स बी फॉर हायर स्किल, दीज आल्सो वी हैड डन अवर लास्ट क्लास। ये भी हमने क्या किया है, डन किया है। एमसीक्यूज हम देखेंगे, बाकी का हम ऑलरेडी आपको हुआ है, ठीक है। आपको एक बार नोटबुक से रिवीजन करना है खुद को ही।
क्वेश्चन नंबर 1 है इन डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डिवीजन में कौन सा स्टेटमेंट सही होता है। रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइजर, रिमाइंडर डिवीजन डिवाइजर से इक्वल होता है। रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, रिमाइंडर डिवाइजर से स्मॉल होना चाहिए। यस, सो दिस इज द करेक्ट। रिमाइंडर इज ग्रेटर देन डिवाइजर, रिमाइंडर ये बड़ा होना चाहिए डिवाइजर से, सो दिस आल्सो रॉन्ग। रिमाइंडर नाइदर लेस और इक्वल डिवाइजर, जो रिमाइंडर होता है वो लेस और इक्वल चाहिए, सो दिस आल्सो रॉन्ग। इक्वल नहीं होता है, जब इक्वल नंबर होता है तब हम डिवाइड कर सकते हैं। सो इसमें स्टेटमेंट कौन सा आता है, बी वाला। रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, रिमाइंडर हमेशा स्मॉल होना चाहिए डिवाइजर से। देन 2 नंबर, इफ द 3645 is divided by 10. So question is, जब हम 3645 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा। जब हम 10 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते तो हम जो भी नंबर 1 वाले प्लेस में होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है और बाकी का नंबर हमें क्वेश्चन होता है। तो अगर इसमें से 5 चला गया तो क्वेश्चन में क्या बचेगा, 364। तो हमें क्वेश्चन कितना मिलेगा, 361। तो इसका आंसर आता है सी। If the divide equal to 0, if the dividend equal to 0, the question is the, जब डिविडेंड इक्वल टू 0 होता है तो हमें क्वेश्चन कितना मिलता है, 0 मिलता है। 24 × 45 इक्वल टू 1080 विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से क्या ट्रू है, तो देखो यहाँ पे 1080 डिवाइडेड बाय 45 किया है तो कितना मिल गया है, 24 है। देन 1080 को 24 के साथ डिवाइड किया तो कितना हो गया है, 45 है। देन 45 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज़ नॉट अ ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। जब हम 1080 को 45 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें 24 मिलता है। 1080 को 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो 45 मिलता है। और यहाँ पे 45 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1085, मतलब इनकी वैल्यू चेंज होगी, एक्सचेंज होगी। लेकिन 45 को 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये नहीं मिलता है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो दिस इज द MCQs, हायर ऑर्डर थिंग्स क्रॉस सर्कुलर एंड दैट for an activity that all things is already we had done our last classes. So I hope all of you nicely understood lesson more division. Thank you and have a nice day.